محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنگلور شرائط مناظرہ کی بیٹھک کا چوتھا پارٹ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس سے قبل تیسرے پارٹ کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ احمد حسن نے رقعہ مفتی صاحب کے پاس بھیجوایا کہ میں نے پہلے نہیں بھیجوایا تھا تو اب بھیجوا دے رہا ہوں، آپ اسے پڑھیے۔ مفتی صاحب نے اس رقعہ کو لے کر احمد حسن کو کہا کہ جو بھی پڑھنے لکھنے کی بات ہے وہ تو بعد میں ہوگی، پہلے آپ نے جو غلطیاں کی ہیں اس سے آپ رجوع کریں اور اس سے آپ توبہ کریں، اور جو رقعہ آپ نے لکھ کر بھیجا ہے اس میں یہ قرآن کی تفسیر ہے کہ آیت ہے کہ سورہ ہے کیا ہے، یہ آپ بتائیں۔ اس کے بعد اس پہ اعراب لگانے کی بات آئے گی۔ جس طرح سے میں نے آپ کے پاس جو بھیجی ہے وہ تو کتاب بھیجی تھی مناظر رشیدیہ، مگر آپ نے کیا لکھ کر بھیجا ہے یہ بتائیے کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ تفسیر ہے کہ اقوال ائمہ میں سے ایک قول ہے۔ تو اس طرح سے اب یہاں سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ اس کلپ کا اور اس پارٹ کا آپ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں اور پڑھیں، سنیں، دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس پارٹ میں بھی بہت ساری حقیقتیں سامنے آئی ہیں، اور احمد حسن کی زبان پہ آخر میں تالا لگا دیا گیا ہے، اور بولنے کے بھی وہ مجاز نہیں ہیں۔ آپ حضرات اسے سماعت فرمائیں۔ جو شرع ہے، حکم شرع ہے، اس کی وضاحت کر کے پہلے آپ اس سے رجوع کیجئے، پھر آگے گفتگو کی جائے گی۔ ہاں اجازت تو ہے، پوچھیں گے۔ یہ مان لیں کہ جب گفتگو کوئی ایک اپنی پوری کر کے خاموش ہو جائے تو وہ آٹومیٹک اجازت ہو ہی جاتی ہے سامنے والے کو۔ اچھا، کیونکہ میں آپ کا معاون ہوں تو ویسے جو متکلم آپ ہیں تو اس وجہ سے میں نے اجازت مانگی۔ کیا اچھا ادھر سے مانگ رہے ہیں؟ جی اچھا، ہم تو سمجھے یہ ٹائم آپ کا ہے۔ جی، قبلہ مفتی صاحب سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس طریقے سے آپ بہتان کا الزام لگا رہے ہیں قاری صاحب، آپ بھی یہ بہتان لگا چکے ہیں قبلہ مفتی صاحب کہ قاری صاحب نے صحیح الاسناد کہا ہے، اسناد نہیں کہا۔ یہ غلط پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے۔ کیا واقعی یہ اسناد کے بجائے اسناد پڑھ دینے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط جی آپ بول لیجیے۔ کیا ہے یہ غلط بات منسوخ کرنا کہلائے گا؟ یہ کیا ہے؟ اگر وہ حدیث کے سوا کچھ اور کسی اور کا کلام پڑھ کر کے پھر کہتے ہیں صحیح الاسناد، تو غلط بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوخ کرنا ہوتا۔ وہ حدیث صحیح ہے، حدیث پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، سند کا ذکر کرنے میں اسناد کے بجائے اسناد ہو گیا ہے۔ اتنی بات کی بنا پر قبلہ مفتی صاحب نے آپ نے بھی بہتان کی قسم لگایا، اور بہت بڑا بہتان۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کا کیا بہتان لگایا ہے؟ تو اس سے پہلے آپ کو توبہ کریں اور رجوع کریں، پھر ہم قاری صاحب سے مطالبہ کریں گے کہ وہ بھی رجوع کریں، جبکہ قاری صاحب کی کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سند کے معنی میں آپ نے غیر مغالطہ دینے کی کوشش کیا قبلہ مفتی صاحب، اس لیے کہ اس سند کو لا کر یہاں پہ کر رہے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سند میں جتنے بھی روایت ہیں ہر راوی کی سند کو طلب کیا جاتا ہے، نہیں طلب کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی راوی ایک حدیث رکھتا ہے اور صحیح حدیث ہے، اس کے پاس اس کو بھی آگے بڑھانے کی اجازت ہے، اور اس کے نہیں اجازت کے سند لے کے آئے، پھر کیا ہے حدیث کو آگے بڑھائے، تو کیا ہے وہ سند اور ہے، اس سند کو کے ذریعے آپ نے اپنے اس دعوے پر استدلال یہ کیا ہے، استدلال فاسد ہے، اور یہاں آپ نے مغالطہ دینے کی کوشش کیا ہے مفتی صاحب۔ یہ بھی کیا ہے آپ کی شخصیت کے مناسب سے یہ چیز دے نہیں دیتی ہے آپ کو کہ آپ کوئی ایسا مغالطہ دیں۔ بہرحال آپ کو اس کا اعتراف کرنا ہوگا۔ ایک منٹ، ہاں ہوگا کم، بولی ٹائم ہے۔ اس کا آپ کو اعتراف کرنا ہوگا کہ ہاں آپ نے بھی قاری صاحب کے ذمہ بہت بڑا بہتان لگایا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جھوٹ باندھنے کا۔ تو یہ دو چیزیں میں آپ سے عرض کروں گی، باتیں بہت سی ہیں، مگر چونکہ میں ہی بولوں گا، متکلم آپ ہیں، اس لیے میں زیادہ دخل
गुस्ताखी नहीं करना चाहता। ये दो चीजें थी कि सनद का गलत माना बयान करके आपने गलत इस्तेमाल किया, मुगालता किया। दूसरी चीज कारी साहब की तरफ एक बहुत बड़ा बुहतान आपने बांधा है, उससे आप पर भी रुजू तौबा लाजिम है। जी हमें 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम। देखिए जो इल्जाम मुफ्ती साहब हम पे लगा रहे थे वो इनकी तरफ आयद हो गया, ठीक है। मुफ्ती साहब तौबा करें, रुजू करें, क्योंकि ये गलती इन्होंने मजमे आम में की है तो तौबा भी मजमे आम में होगी। नंबर 2, जिस शख्स को, जिस मुफ्ती को ये नहीं मालूम हो कि ये कुरान है या हदीस है, नुक्ता गौर तलब है, जिस शख्स को ये मालूम ना हो कि ये कुरान है या हदीस है, वो हमसे क्या मुनाजरा करेगा? तो अभी इबारत पढ़ने के लिए मुफ्ती साहब ने भेजा था, तो वहाँ कोई सराहत नहीं थी कि ये हदीस है, इसकी इबारत पढ़ दीजिए, ये कुरान है। आप जी बात आपकी पूरी हो गई? हाँ पूरी हो गई, टाइम हो गया, कि आप लिख दीजिए पूरी हो गया। यानी अभी टाइम नहीं पूरा हुआ, अपना टाइम है, टाइम हो गया, हो गया, हो गया। बाकी हमारे बात हो गए, 3 मिनट हमारे बाकी हैं। टाइम अच्छा अभी 3 मिनट हुए, अभी 7 मिनट बाकी है। नहीं ज्यादा हो गया, वो जो बोले थे ना बीच में बोल रहे तो वो वक्त नहीं चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हमारी तरफ से हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराइत मुनाजरा हो या मैदान मुनाजरा, मुनाजिर को हाजिर दिमागी से बात करना लाजिम है। जो इन्होंने हाजा हदीसुन सहीहुल इस्नाद और सहीहुल इस्नाद असनाद की बात की है, क्या इस जुमले को मैंने हदीस करार दिया है? ये हदीस नहीं है। तो फिर आपने ये फरमाया कि 1 मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। वो बात निशानदेही करना, मैं किस पे आप अपने टाइम में जवाब दीजिएगा, अपने टाइम में जवाब दीजिएगा। आपने खुद ऊपर तर्जुमा किया है कि इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में सही सनद के साथ नकल फरमाते हैं। तो ये तो इबारत खुद बता रही है कि ये हदीस नहीं है, ये मुहद्दिस का अपना इरशाद है। मैंने उस जुमले को हदीस रसूल नहीं कहा है। आप मेरी आवाज को समाअत कर सकते हैं। इस जुमले को आपने समझने में खता की कि मैंने इसे हदीस रसूल फरमाया कहा है। ये तो खुद मुसन्निफ का अपना इरशाद है, मुहद्दिस का फैसला है। इसलिए आप जो इसे इफ्तरा कह रहे हैं कि रसूल पाक पर इफ्तरा और तौबा करें, ये आपकी बुनियाद ही गलत है, बुनियाद ढह जाती है। ये मैंने कहा ही नहीं है कि वो हुजूर की हदीस है। आपने कैसे कह दिया कि हुजूर की तरफ उसकी निस्बत की गई? हाँ, ये मैंने बात को हटाकर हदीस शरीफ जो पेश की थी, चूंकि उसमें सहीहुल इस्नाद या असनाद का लफ्ज मौजूद है, तो मैं ये दिखाना चाहता था कि अगर हदीस बगैर सनद के मोतबर नहीं, तो हमारी और आपकी बात बगैर सनद के कैसे मोतबर हो सकती है? मेन चीज ये है। और अल्हम्दुलिल्लाह करम है हम लोगों पर मुहद्दिसीन का। इन्ना असहल कुतुब बअद किताबिल्लाह तआला अल बुखारी, रुए जमीन पर कुरान करीम के बाद सही तरीन किताब बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तसनीफ फरमाई, मगर वो ये जानते थे कि बाद में बहुत सारे लोग बेसनद घूमेंगे और रसूल पाक की तरफ उसकी निस्बत कर देंगे, तो उन्होंने सनद बाकायदा लिख दी। तो सनद का लिखना ये तो तमाम अइम्मा मुहद्दिसीन से साबित है। सनद जो आप फरमा रहे हैं,
حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں، اور پھر اس کے بعد میں قال ابو ہریرہ قال سعید الخدری قال فلاں قال فلاں. تو یہ سند انہوں نے جو لکھی ہے، سلسلہ روایات جو انہوں نے لکھا ہے، تو سند کا لکھنا اسی وقت رائج ہو گیا تھا تاکہ کوئی جھوٹا آدمی محدث بن کر رسول پاک کی طرف غلط حدیث منسوب نہ کر سکے. تو جس طرح سے انہوں نے سندیں لکھ دی تاکہ کوئی جھوٹ کی آمیزش نہ کر سکے، اسی طریقے سے ہندوستان نہیں دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں سندوں کا سلسلہ جاری ہو گیا تاکہ کوئی عالم کا لبادہ اوڑھ کر جا کے قوم میں عالم بن کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کرے. اس لیے علت مشترکہ موجود ہے. اسی لیے ایک بہت عظیم الشان محدث نے فرمایا ہے، لولا الاسناد لقال من قال ما شاء. اگر سند نہ ہوتی تو جو چاہتا جیسا چاہتا کہہ کر کے حضور کی حدیث بنا دیتا. یہ سند اسی لیے ہے اور محدثین نے اسی لیے لکھا ہے تاکہ جھوٹ کی آمیزش نہ ہو سکے. تو سندیں اسی لیے جاری ہوئیں تاکہ کوئی جعلی جو صرف حافظ اور صرف مولوی ہو، علامہ اور مفتی بن کر کے قوم کو گمراہ نہ کر سکے. تو وہاں بھی سند جو لکھی گئی کذب سے بچانے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے اور جھوٹ بولنے سے لوگوں کو روکنے کے لیے، اور یہ سندیں جو دی جا رہی ہیں یہ بھی اسی مقصد کے تحت تاکہ غیر عالم اپنے آپ کو عالم بنا کر قوم کے سامنے نہ پیش کر سکے. تو یہ قیاس مال فارق نہیں ہے بلکہ علت مشترکہ موجود ہے، اور جب علت مشترکہ موجود ہو تو اس کو قیاس مال فارق کہنا خود ہی قیاس مال فارق ہے. اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے. لہذا ہم نے ھذا حدیث صحیح الاسناد کو حضور کا قول نہیں بتایا، آپ نے بھی میری طرف جھوٹ بات منسوب کر دی. تو ایک مجرم تھے، اب دو مجرم ہو گئے. اس لیے اس بات کو آپ تسلیم کیجئے کہ خطائیں ہو رہی ہیں. اب کتنی خطاؤں پر نظر اندازی کا قلم چلایا جائے آپ ارشاد فرمائیں. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے پہلے چونکہ کہا تھا کہ بجائے لمبی گفتگو کرنے کے جو مناظرہ کا موضوع ہے اور شرائط ہیں اس پر گفتگو ہو جائے، اس لیے میں گزارش کروں گا اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہ آپ کی طرف سے چیلنج مناظرہ آیا تھا تو آپ اپنا موضوع مناظرہ متعین فرمائیں تاکہ گفتگو آگے بڑھائی جا سکے. جی مفتی صاحب، میں یہاں پہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں، یہ جس کو پڑھنے کے لیے آپ نے فرمایا تھا، مطلب ہے وہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس کے تعلق سے کچھ ہے نا تو ارشاد فرما. جس کو پڑھنے کے لیے فرمایا تھا آپ نے کہ اس کو پڑھ دیجیے، وہ حدیث ہے یا نہیں؟ جواب میں بات آپ پوری کر لیں. اصل میں اصول مناظرہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے وقت میں جب پوری بات کر دے تب اس کی ہر بات کا جواب دیا جائے. نہیں، وہ نہیں ہوتا ہے. آپ پوری بات کہہ لیں. آپ ہی فرما رہے ہیں کہ گفتگو بڑھائی نہ جائے، تو میں نے اسی پر تو کہا کہ موضوع مناظرہ پر گفتگو کریں تاکہ بات آگے بڑھے. اتنی ساری باتیں آپ کی میں نے مان لی تو کم از کم اب تو آگے گفتگو شروع. جس کی میں نے اجازت ہے وہ تو آپ نے نہیں فرمایا. جی آگے بڑھیں گے، لیکن جو مفتی صاحب لکھی ہے کیا ہے، یہ آپ بار بار فرماتے ہیں کہ مناظرہ کیا ہے. توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہار الحق والصواب. دو کیا ہے فریق کا کسی ایک نسبت میں غور و خوض کرنا، یعنی توجہ دینا. مقصد کیا ہے؟ حق کو ظاہر کرنا. تو ہمارے سینے میں کہ کچھ زیادہ ہونے چاہیے. یہ کیا نام ہے فوقیت برتری اور کیا ہے تعالی ہے کہ میں فریق مخالف کو زیر کر دوں تو میری برتری ہو جائے. نہیں،
हम जिस चीज में हम लोगों को थोड़ा उसको जाहिर करना है, तो ये घर के अंदर जज्बा होना चाहिए। तो यहाँ क्या नाम है, अब वही बात कि आपने फरमाया था, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत बात मंसूब किया है। तो मैंने अर्ज किया मुफ्ती साहब, असनाद पढ़ने में कौन सी गलत बात मंसूब हो जा रही है? ये मैं आपसे बड़ी गलती यही तो थी कि मुफ्ती कारी साहब ने इसनाद के बजाय असनाद कह दिया, जिसकी बिना पर मुफ्ती साहब ने फरमाया कि आपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत बात मंसूब किया है। तो आया इसनाद असनाद करने में कौन सी गलत बात मंसूब हो जा रही है? मेरा ही मुतालबा था, इसकी हदीस का ही नहीं। मिसबाही साहब जी, हजरत ने भी वक्त में आपका है वक्त आपको इजाजत नहीं, अब हम भी कुछ पूछ सकते हैं, अगर आप बोले तो हम भी पूछ सकते हैं। कोई बात हाँ, मेरी एक गुजारिश थी। दूसरी चीज ये कि वही समझ वाली बात आ गई कि मुफ्ती साहब कहते हैं इल्लत मुश्तरका है जी। मैंने अर्ज किया उस सनद, क्या वहाँ हर रावी के वास्ते क्या वहाँ ऐसी जैसी सनद तलब की जा रही है? वो क्या है, फरमाने मासूम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बरगुज़ीदा रसूल हैं, तो आपका फरमान बहुत हैसियत रखता है। लिहाजा ये परखने के वास्ते आया ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का फरमान है या किसी गैर का फरमान है, जाहिर सी बात है उसके वास्ते सनद होना जरूरी है। लेकिन ये कि ये जो शख्स पढ़ रहा है कुरान ही है या कुरान नहीं है, आया जो पढ़ रहा है ये हदीस है या नहीं है, इसके लिए सनद, कागज वाली सनद का होना क्या जरूरी है? भाई तो जाहिर है कुरान पढ़ रहा है किसी एक मजमे में, हजारों को बैठा होता है, समझ जाता है कुरान है या नहीं है। हदीस पढ़ने के लिए कागज की सनद होना जरूरी नहीं है, क्या उस सनद से इस पर इस्तेलाल करना दुरुस्त नहीं है। ये मैंने अर्ज किया था, मैंने आपको कोई नाम नहीं दिया, बल्कि मैंने आपसे पूछा था कौन सी गलत बात की निस्बत हो जा रही है। अगर इसनाद असनाद कहने में रसूलुल्लाह की तरफ गलत बात की निस्बत हो तो उसकी निशानदही की जाए, और अगर नहीं हो रही तो फिर आपकी तरफ से कारी बात पर ये इल्जाम है। अब आपने खुद अभी बात को तूल देना है, इसको कहते हैं मुजादला, इसको कहते हैं मुकाबला, इसे मुनाजरा नहीं कहते हैं। इसलिए कि मुनाजरे में क्या है, इजहार हक यानी हक और दुरुस्त बात को जाहिर करना मकसद होता है, जबकि मुकाबला और मुजादला में क्या होता है, मुकाबला में क्या होता है अपनी आईनी फौकियत बरकरार जाहिर करना होता है, मुजादला में सिर्फ छला मकसूद होता है। तो हम मुजादला इसको नहीं बनाना चाहते, मुकाबला नहीं बनाना चाहते, बल्कि मुनाजरा ही नहीं है, तो मुनाजरे की शायद हम भी यहीं पे खत्म कर रहे हैं। मैं नहीं बनाना चाहता बात, मुफ्ती साहब से मैं याद कर रहा हूँ, बात आप बोल दे रहे हैं। आपने कहा भी आपने तौबा कीजिए, तौबा का मुकाबला आपने किया, जबकि उससे पढ़ करके आपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़दस पर आपने झूठ बांधने का इत्तेहाम लगाया, जबकि कतई झूठ साबित होता नहीं है। जिसे क्या तौबा उनका है, तस्दीद क्या जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने कोई मुतालबा किया, अब छोटी सी बात की बुनियाद पे कि कारी साहब दिखा रहे थे अंग्रेजी बात, क्या अंग्रेजी में अरबी ही लिखा है, अब कहते हैं अरबी होता है, अरबी की वो तो अंग्रेजी में जो लिखा था वो अरबी पढ़ दिए, उसको लेकर हम बात बढ़ा रहे हैं। तो अहले फहम जानते हैं, जो समझ बूझ रखते हैं कि वाकई आप फूल देना चाहते हैं, खलते बहस कर रहे हैं, मुगालता देने की कोशिश कर रहे हैं, और हकीकत ये है कि खुद आप जो है आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है कारी साहब के ऊपर, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बांधने का। इससे कहना जबकि झूठ नहीं हो रहा है तो रुजू आप पर जरूरी है। टाइम हो गया भैया, अब आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि चलिए इजाजत है मुआविन को बोलने की, लेकिन काफी देर से मुझे लग रहा है कि शायद अमली तौर पर मुतकल्लिम चेंज होता जा रहा है। दूसरी बात यह है, हजरत ने फरमाया था कि हाजिर दिमागी बहुत जरूरी है मुनाजरे के लिए। हाजिर दिमागी, अब सुन लीजिए, हाजिर दिमागी इसलिए जरूरी है कि अगर दिमाग हाजिर नहीं होगा तो वो बर वक्त बात का इनकार कर सकता है। दूसरी बात यह है कि वो असली बात को समझ ही नहीं पाएगा। हमसे बार बार ये कहा जा रहा है कि आप वक्त को बढ़ा रहे हैं, और दो लफ्ज की बार बार रट लगाई जा रही है, खलते मबहस और मुगालता। मुझे लग रहा है कि शायद फरीक मुखालिफ ने इसको बड़ी अच्छी तरीके से महफूज किया है ज़हन दिमाग में, और बस बार बार इसी लफ्ज का इरादा करना है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ना हम खलते मबहस कर रहे हैं और ना मुगालता दे रहे हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात की शान ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुफ्ती साहब किबला ने पहले ही कहा कि मैंने सहीहुल इस्नाद को हदीस का टुकड़ा करार नहीं दिया है, और सराहत के बावजूद भी मिसबाई साहब उसूल आपने पढ़े होंगे। पहली बात तो मुफ्ती साहब किबला ने जुमला बोला ही नहीं, और बस सबीले तनज़्ज़ुर अगर मान लिया जाए तो इनकार का तौबा, ये उसूल फिक़्ह को उठा लीजिए आप, आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। तीसरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, आप जो बार बार कह रहे हैं कि इसमें जो इस्नाद है हदीस पाक में, मुझे ये बताइए कि मुहद्दिसीन अपने शेख से इजाजत लेते थे कि नहीं, उनको मकतूब इजाजत होती थी कि नहीं, क्या वो कागज पे लिखी हुई सनद होती थी कि नहीं होती थी? उसूल मुहद्दिसीन आपने पढ़े होंगे, नुखबतुल फिक्र और नुज़हतुन नज़र का मुताला कर लीजिए, क़राअतन है, इसी तरीके से अजाज़नी या कतबादी, इस तरह के जो जुमले आते हैं, क्या वो कागज की सनद नहीं थी? मुहद्दिसीन जो अपने शागिर्दों को अता फरमाते थे। इसी तरीके से आप जामे अशरफिया से फारिग हैं, मिसबाई हैं, आपने भी अपने उस्तादों से हदीस की सनद ली होगी। मुतालबा मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, सुन लें, आपने भी अपने असातिज़ा से कागज की सनद ली है, और आपको मालूम है सनदो इजाजत हदीस, सनदो इजाजत फिक्र वगैरह के कलिमात लिखे रहते हैं। मुहद्दिसीन हजरत ने यहाँ इल्लत मुश्तरका ये बयान की कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारे बुजुर्गान दीन ने, मुहद्दिसीन ने हदीसों की सनदें इसलिए लिखी है ताकि कोई जाली मुहद्दिस आकर के हदीसे गढ़ के हुजूर अलैहिस्सलाम की जानिब मंसूब ना करे। इस बुनियाद पर वहां उन्होंने जो है हदीसों की सनदें लिख दी, एक बात। दूसरी बात, आपने इल्लत मुश्तरका के तौर पर ये फरमाया, इसी तरीके से हमारे मदारिस से सनद दी जाती है ताकि कोई आज जाहिल भी है, आलिम का लिवादा हुए, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आलिमाना शक्ल सूरत में आके और महज हिफ्ज की सनद लेकर और खुद को आलिम और पढ़ा लिखा साबित करके आपके ईमान अकीदे को बर्बाद न कर दे। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने यह सिलसिला जारी किया ताकि मुस्तनद लोग ही कौम की तर्जुमानी करें। ये हजरत की गुफ्तगू का मतलब है। हजरात बिस्मिल्लाह, अभी बाकी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसबाई साहब ने बार बार कहा कि गुफ्तगू को तवील न किया जाए, हालांकि वो खुद ही तवील कर देते हैं, तवील खुद ही कर देते हैं। चलिए खैर, कोई बात नहीं। फिर मैं इसकी सराहत कर रहा हूं कि सहीहुल इस्नाद को मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बताया ही नहीं है, सब ऑडियो और वीडियो में मौजूद है। आपको इत्मीनान ना हो, आप देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर इस पर आपसे गुफ्तगू हो जाएगी। रही बात ये कि क्या इस तरह से लिख करके सनदें दी जाती थीं, मुझे बहुत हैरत हो रही है, बहुत हैरत हो रही है क़िल्लते इल्म और ज़िल्लते उलमा पर, कि इल्म इस कदर कलील हो गया, इस कदर थोड़ा इल्म हो गया। क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के पास कोई पैगाम भेजते थे, या हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सीदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सीदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सीदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गवर्नरों को, किसी को माजूल किया, किसी को गवर्नर बनाया, तो क्या वो लिख करके नहीं देते थे कि मैं तुम्हें माजूल करता हूं और तुम्हारी जगह फला को मैं मुकर्रर करता हूं? ये सनद नहीं तो क्या है, और तहरीरी सनद नहीं तो क्या है? अगर खुलफाए राशिदीन किसी गवर्नर को माजूल करते थे, तारीखुल खुलफा ही पढ़ लीजिए, कतबा इलैहि अरसला इलैहि रिसालतन जाआ बेरिसालतिही, वो खत लेकर आए, वो तहरीर लेकर आए, ये सबूत ही तो होता था। सनद बेमाना सबूत होता है, और किसी को गवर्नर बना के भेजना,
किसी को माजूल कर देना, ये तहरीरन जाता था। कुतुब तारीख बिलखुसूस आप तारीखुल खुलफा देख लीजिए, उसमें भरा पड़ा है हवाला। तो जिस तरीके से उस जमाने में किसी को मनसब दिया जाता था तो सनद दी जाती थी कि अब तुम गवर्नर बनाए गए, तुम माजूल किए गए। इसी तरीके से पढ़ाने के बाद असातिज़ा ने अपने तलबा पर मेहरबानी की कि हमने तुम्हें पढ़ा दिया है, ये सबूत लेकर के चले जाओ। सनद बेमाना सबूत है। किसी चीज का सबूत जबानी भी होता है और सबूत तहरीरी भी होता है। तहरीर हो गई तो उसी को तहरीरी सनद कहा जाएगा, और अगर सिर्फ यूं ही जबान से कह दिया तो लिसानी सनद है। इस पर कौन सी गुफ्तगू तवील करने की जरूरत है, ये तो आप भी जानते हैं। अभी मौलाना शहजाद साहब ने आपसे कहा सनद फिक्र, सनद हदीस, बल्कि सनद फजीलत आपने खुद अपने असातिज़ा से हासिल की, आपने उसको लिया। आपका अमल बता रहा है कि आपके नजदीक भी इसकी कुछ न कुछ अहमियत जरूर रही होगी। किसी जमाने में कम अहमियत थी, किसी जमाने में ज्यादा अहमियत हो जाती है। आप बगैर सनद के किसी जॉब में चले जाइए, किसी कंपनी में कोई कबूल कर ले तो आप जो कहेंगे मैं आपको इनाम दूंगा। चपरासी बनाने के लिए भी लोग देखते हैं कि कोई सर्टिफिकेट है या नहीं है। आप कैसे बात करते हैं कि सनद की जरूरत नहीं होती है? इसलिए उस पर आप गुफ्तगू ज्यादा मत बढ़ाइए। तहरीरन मौजूद है, तकरीरन मौजूद है, ये सब बदीहियात से है। और मैंने पहले भी कहा था, आपको इत्मीनान ना हो आप देख लीजिए कि वो टुकड़ा वो हदीस का नहीं, हदीस उसके पहले है। मैं यही तो दिखाना चाह रहा था, और उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर हदीस के लिए सनद की जरूरत है तो आपके आलिम होने के लिए भी हमें सनद की जरूरत है। ये बात हमने पहले कही थी और अब भी वही कह रहे हैं। आपने हमारी तरफ झूठ बांधा कि इन्होंने एराब नहीं लगाया, इन्होंने ये खता कर दी। आपने कई कई तोहमत मुझ पर लगाई सबके सामने, आपने उससे रुजू नहीं किया। कारी साहब, आपको इंसाफ के साथ, दयानतदारी के साथ अपनी बातों से रुजू कर लेना चाहिए। लेकिन चूंकि मौलाना ने कहा है बात आगे मत बढ़ाइए, इसलिए आपने चैलेंज मुनाजरा किया था, तो अब मौजूए मुनाजरा आप इरशाद फरमा दें ताकि उस पर गुफ्तगू हो जाए और आगे गुफ्तगू जारी रखी जाए। 5 मिनट एक आखिरी टर्म हमारी चल रही, बस एक सरकार 2 मिनट मौजूए मुनाजरा। असल में देखिए, 1 मिनट, मुफ्ती साहब मेरे ख्याल में जो हमारा मौजू था उससे जो है ना अलग जा रहे हैं, या फिर हम मौजू पे बार बार बुला रहे हैं। सुनिएगा, मौजू की तो ये सनद पे मुनाजरा कर रहे हैं। नहीं, ये मुनाजरा सनद का नहीं है, मुनाफकत मुआविया का है। और रही बात दूसरी ये है कि जब मैंने सबसे पहला सवाल किया कि मुफ्ती साहब कुरान हदीस से जरा सनद के दलाइल पेश कर दे, तो मुफ्ती साहब दलाइल पेश नहीं कर पाए। आ गया ये हमारी बात जो चल रही है, सिर्फ हमारे उलमा इकराम क्या पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से फारिग है, वो सनद, वो मैंने बता दिया भैया, वो मैंने बता दिया। कहना था आप है नहीं तो फिर नहीं है ना, आप जो दिखा रहे हैं वो आर्टिकल नहीं है। शफी से सवाल क्यों पूछा फिर भाई? आप मुनाजरा नहीं, उनसे कहीं मौजूद बना दो, बात ज्यादा मौजूद बना, कहीं मौजूद बना दो। हाँ शुरू होता है। इसके तहत तय करना तो माध्यम से तय करना, तय करना तो आराम से क्या है चाहता हूँ। उन बच्चों ने ये कहा क्या है मुनाज़िरे की शराइत भी जो तय करना है तो आलिमों से ही ना तय करना है। बस आप आलिम है नहीं, बस 2 ही बात में मामला हो जाता है। देखिए, अल्लाह ने जितना मुझे इल्म दिया उसका मैं आलिम हूँ जी, ठीक है, मेरे पास डिप्लोमा भी है और ये हदीस भी। और दूसरी बात है कि हमारे साथ मुफ्ती साहब, दोनों की बात एक बात है, क्या मुफ्ती भी आलिम नहीं होता है, हाफिज। दूसरी बात में बहस हो जाएगी। उनका दिमाग से हाँ, ये तो सनद पे मुनाजरा कर रहा है, असल मौजूद पे कहाँ आ रहा है? तो जबान लड़खड़ा
शफी साहब को बुलाइए, मैं इनको एतमाद में देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मौजूद है कर लीजिए। हम मौजूद तक करा दीजिए, खाना खा भाई भी मेरे साथ लाइन पर देखिए, हम भी कह रहे हैं मौजूद मुनाजरा वही क्या है, बात सब खत्म कर रहा है। आ गए बिल्कुल आ गए आग में समझ। आप मेरे को मेहरबानी करें जी मुख्तसर शराब बताने से आपके लिए सही हो जाएगा। हाँ, इसका फोन नंबर कमेटी से जो आप दोनों को सदर बनाया गया, आपसे गुजारिश ये है कि हमने जो बातचीत तय की गई तो उसमें ये लिखा गया था कि मुस्तनद जो आलिम है वही बैठे। अब मुस्तनद आलिम अगर यहाँ पर नहीं है तो अब इसके बाद शरायत मुनाजिरा तय करने के बाद भी जो है मुस्तनद आलिम बैठना है मुनाजिरे के लिए। अब सिर्फ अब हजरत तो वही बोल रहे हैं मुस्तनद आलिम नहीं है। जी बोलिए, आपके बात वही नहीं है, आपकी बात दुरुस्त है जी। अगर ये शरायत मुनाजिरा तय हो जाता है जी तो इंशाअल्लाह ताला जो डेट मिलेगी और जो मौका होगा तब हम पहले ही एक दूसरे एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक जी सर, ठीक है। अच्छा एक मिनट मुझे इजाजत दीजिए। शरायत भेजो दौलत साहब जवाब है। एक मिनट वहाँ पे बातचीत हमारी देखिए सब लोग हम लोग गए थे बातचीत करने के लिए। दौलत साहब भाई मौजूद थे, रबी भाई मैं मौजूद थे। बात हुई थी शराइत मुनाजिरा तय करने के लिए भी मुस्तनद आलिम दीन की जरूरत है। अब यहाँ शराइत मुनाजिरा तय करने के लिए अब कारी साहब मुस्तनद आलिम दीन नहीं है हमारे नजदीक, क्योंकि आलिम दीन होने के लिए हमारे नजदीक आज अवाम के नजदीक भी इतनी देर जो डिस्कशन हुआ वही हुआ सर्टिफाइड स्कॉलर बैठकर बात करें। अगर सर्टिफाइड स्कॉलर बैठकर शराइत मुनाजिरा को बात नहीं कर पाया तो शराइत मुनाजिरा ही मायने नहीं रहे। दोनों तरफ से हमने ये तय किया कि दोनों तरफ के उलमा अच्छी बात करेंगे, सुनने के लिए मिलेगा, अच्छी हमारे अंदर जो इल्म में इजाफा होगा। लेकिन क्या है, सर्टिफिकेट नहीं है, अगर कॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं है, पीयूसी नहीं पढ़ा है, डिग्री नहीं पढ़ा है, तो ऐसे लोगों से बात करने का मतलब जी जो हजरत वाला ने सर्टिफिकेट सामने पेश करी थी उस सर्टिफिकेट का कोई वो आप नहीं मानते तो आप कौन सी तरीके की सर्टिफिकेट? दौलत भाई हमारे मदरसे में रखत भाई मेरी बच्ची ने पीयूसी करा है, एसएलसी में मेरी लड़की ने ये डिप्लोमा लिया है, उससे लाके बैठाऊंगा मैं। अभी आपको दिखा देता हूँ मैं क्या घर से में मेरी बच्चे ने एसएलसी में यही डिप्लोमा किया है। भाई साहब आप खुद मुआविन मुनाजरा हैं, नहीं, आप भी बता दीजिए ना, उस सनद की बुनियाद पर कोई मुस्तनद आलिम दीन हो जाएगा? हाँ, आप बता दीजिए। नहीं, आप दोनों हजरात तय कर लीजिए कि क्या उस सनद की बुनियाद पर मुस्तनद आलिम दीन कहलाएगा कोई? क्या आप इन सनदों की बुनियाद पर कारी साहब को मुस्तनद आलिम मानते हैं? आप बस इसका जवाब दे दीजिए, बात आगे बढ़ जाएगी। आप बात भी सुन रहे हैं ना, मेरी बात को सुनिए। तो सवाल आपकी समझ में आया? कारी साहब ने जो दो सनदें दिखाई हैं और बतौर तफसील बतौर मिसाल हमारे कारी साहब ने बताया, और मैं ये भी बता दूं कि ऐसी सनदें मेरे पास एक नहीं बहुत सारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद भी मुस्तनद मैंने ऐसे उलमा की बारगाह में बैठ के शरफ़ तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया। मिसबाई साहब आपने अशरफिया की चाहत दीवानी में हासिल किया। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप इन सनदों की बुनियाद पर कारी साहब को मुस्तनद आलिम मानते हैं या नहीं? ये सनद तो आलिमियत की नहीं। हाँ, तो आगे मौजूद मुनाजरा देखिए, मौजूद मुनाजरा पे आइए। मुमकिन है आपने जो सनदें आपके पास है वो दिया है, इसकी बिना पर शायद आपने आलिम होने का दावा नहीं किया है। अगर ये किया हो तो ये अच्छा सही नहीं होगा। एक बात मुझे मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ आपसे मिसबाई साहब, आपने कह दिया, इस बात को मान लिया और रिकॉर्ड है कि ये इन सनद की बुनियाद पर आलिम नहीं है। ये सनद आलिम हाँ नहीं बात बस बात तो बढ़ाई है, अल्फाज की ताबीर बलफ़ से दीगर में बहुत कुछ हो सकता है। दूसरी बात मेरा वक्त में इतनी देर से ठीक है बहुत अच्छा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि
आपने जब एतराफ कर लिया इस बात का कि ये मुस्तनद आलिम नहीं है, तो जो इन दोनों हजरात के दरमियान, दौलत साहब के दरमियान और वो उधर बैठे हुए हैं सैयद सज्जाद साहब के दरमियान जो बातचीत हुई थी उसके खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात, एक मिनट दो, बस एक सवाल कर रहा हूँ। वक्त मेरा हाँ ना, अब आप वक्त की देखिए, बोलिए, लेकिन अभी मुश्तरक का वक्त चल रहा है, क्योंकि अभी दोनों का। दूसरी बात मुझे वो अब मुझे ये बताइए कि 4 नंबर में आपने लिखा था, ये हमारी तरफ से नहीं आया, सूफी इस्लामी बोर्ड की तरफ से आया है, मुनाजरा आलिमाना अंदाज पर होगा। ठीक, शराइत की बात, ये शर्त है कि नहीं? ये मुनाजरा है कि शर्त है? अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा सुन लीजिए, आप कहो मैं वो शराइत मुनाजरा। अब सुन लीजिए मिसबाई साहब, मैं आपकी थोड़ी सी वो तवज्जो चाहता हूँ, करो नीस ये लिखा हुआ है, ये लिपि आपके पास पहुंचा है, और आप जब इस मुनाजरा गाह में आए हैं तो इन दोनों लेटरों को, बल्कि जितने भी लेटर भेजे गए हैं सबको आप तस्लीम करके ही आए हैं, बगैर तस्लीम किए आप यहाँ नहीं आए हैं। हमने आपकी बात तस्लीम की, आपने हमारी बात तस्लीम की, उसमें सीधा लिखा है, आप कह रहे हैं मुनाजरे की बात है। पहली बात तो ये शराइत मुनाजरा आपने भेजे, मुनाजरा नहीं शराइत मुनाजरा। दूसरी बात ये जुमला है शराइत मुनाजरा और वक्त मुनाजरा तरफैन की उलमा ही तय करेंगे। अब तो लफ्ज़ शराइत मुनाजरा आ गया, अब तो आपको तसल्ली होगी इस लफ्ज़ से। दूसरी बात ये हमारा लेटर, आपका लेटर ये है मुनाजरा आलिमाना अंदाज पर होगा। जब आपने भाई साहब को मुस्तरद आलिम नहीं माना, इसका मतलब आप अपनी लिखी हुई शर्त को इस वक्त जो है उसके खिलाफ कर रहे हैं। वक्त हमारा काफी अच्छा खासा लग गया, इसी बात पर हम यही साबित करना चाह रहे थे बार बार जो आपसे मुतालबा था। जी आप बोलिए। जी आप बोलिए, आप अपने वक्त में बोले हैं, आप बोलिए, आपसे बड़ा कोई। मेरी तरफ से आपको इस वक्त 10 मिनट का टाइम है, आप लोगों में से कोई नहीं बोलेगा, आप लोग भी नहीं बोलेंगे। आप इरशाद शुक्रिया मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब, पहले मैं अर्ज कर दूं कि आप अभी आपने फरमाया कि मैंने ये नहीं कहा है कि फिर आप उसी पर जा रहे हैं। मेरी इस बात पे मौजूए मुनाजरा मैं कह रहा हूँ आप तय कीजिए, इसलिए कि 4 घंटा जो जाय हुआ है इसमें शर्त के खिलाफ हो गया है। तय कर लो। आपने मान लिया कि वो मुस्तनद आलिम नहीं है, तो उनसे बात आप क्यों करवा रहे हैं मेरी? मैं उनसे बात नहीं करूंगा, इसलिए कि शर्त है कि मुस्तनद आलिम होना चाहिए। आप कहो मैं आलिम में करूँ, नहीं तो ये धोखा दिया गया ना, गैर आलिम को बुला के धोखा दिया गया। गैर आलिम को बुला के आपने बिठाया, हमें मुआलते में रखा। सज्जाद ये बात लिखी जाएगी, 4 घंटा हमारा गया है। गैर आलिम से बात नहीं होती है, जब 10-10 बार कहा गया है, डॉक्टर 3-3 बार तुम्हारे बात करते हैं, गैर आलिम कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, गैर आलिम नहीं बात करना। साहब आप इसका इतराफ कीजिए कि हम अपने इस लिखी हुई शर्त के खिलाफ कर रहे हैं, और हमने इन सारे लोगों का वक्त आप तो आलिम हैं, अगर अपना आप तो आलिम, अरे आप तो हैं, आप करो। गैर आलिम को आलिम बनाकर कौम के सामने लेकर आए। अच्छा, तो जो बात भाई मैं जो आया हूँ इसी मकसद से कि चूंकि शराइत मुनाजरा तय करने में, वैसे मेरी बहुत सी मसरूफियात थी, मेरा भी अपना इदारा है, बहुत जिम्मेदारियां, सब मसरूफ सब, हाँ बिल्कुल हर कोई मसरूफ है, सबकी, मैं मसरूफ हूँ। तो सिर्फ इसी मकसद से चूंकि वहाँ कोई मुस्तनद होना चाहिए, तो हाँ ये शराइत को तय करने में अब देख लीजिए उसमें कि शराइत भी मुस्तनद ही आलिम तय करेंगे। आलिम अभी हमने पढ़ा है। जी हमें भाई तो मैं इसी आला जीता बिलहक होंगे। तो मैं हम मौजूद ना, आपने मान लिया इस बात को कि हमने अपनी लिखी हुई शर्त के खिलाफ 4 घंटा बर्बाद किया है। उससे बना है, आप मुश्तक में मत जाइए, माखज़ इश्तिकाक में मत जाइए, मादा इश्तिकाक में मत जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुबीन पूरे मुताला किया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक मिनट अब से फरार ना बोले, आपके लिए कोई ऐसा नहीं करेगा। 1 मिनट मुफ्ती साहब, हम आपके लिए बोलते हैं ना, 1 मिनट, अभी हमारा वक्त चल रहा है, 1 मिनट आओ। इसमें लिखा हुआ है मुस्तनद आलिम नहीं। एक मिनट आप सुनिए, हमारा वक्त चल रहा है, अभी हम नहीं सुनेंगे। अरे आप सुनिए, बोलने से कोई भी बात कर सकता है। नहीं अरे 1 मिनट से बात हुई, बहुत अच्छा है। मैं आलिम हूँ, मैं
कि हमने गलत लिखा है, जज्बात में मैं जज्बात में नहीं हूँ, जज्बात में नहीं हूँ। अभी शरायत में शफी साहब आप इधर आए। मैं आप क्यों असल में मुखालता आपने देना चाहिए, जब से मुखालता बार बार बोल रहे हैं और खुद ही मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने जितनी बातें कही अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। गैर मुस्तनद को लाके बैठा के हमारा वक्त तय कर रहे हैं। आप अगर हम ये चाह रहे हैं आप करो तो मैं जल्दी से समेट लें, क्योंकि अब वो मुस्तनद आलिम नहीं, मुस्तनद के मुताबिक उनसे बात नहीं होगी। तो आप कहिए कि दूसरे साहब आप तैयार हो जाइए बात करने और मौजूद मुनाजरा ठीक है। देखिए हमारी गुफ्तगू कोई ऐसी नहीं हो रही है जो किसी की शान के ये आपका है ना। देखिए सर, आपके सदरे मजलिस भी इस बात को मान रहे हैं कि आपका है और आप भी तस्लीम कर रहे हैं और करेंगे कि आपने भेजा है। तो जब आपने भेजा है तो आप ये एतराफ कीजिए कि मैं इस गलती का इर्तिकाब कर चुका हूँ। मुनाजरा आलिमाना अंदाज पर होगा, मुझे इसका आप जवाब दीजिए। आपने जब खुद एतराफ किया कि नशरात की बुनियाद पर सामने बैठा हुआ फरीक मुखालिफ और मुतकल्लिम मुखालिफ, संजीदगी से पढ़, मैं बिल्कुल संजीदगी से पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तहम्मुल के साथ, बिल्कुल तहम्मुल के साथ मतानत तो संजीदगी के साथ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फकीर में कभी घबराता है। मैं आहिस्ता ताकि आवाज चौथी जो शर्त आपने लिखी थी हमने नहीं लिखी, आपकी तरफ से आई है। चौथी जो बात आपने लिखी है, सुनिए, कुछ मुझे भी बोलने की इजाजत दीजिए। आप हम शर्त तय करने आए हैं, तो अब शर्त तय करना मतलब इससे पहले कोई शर्त नहीं है, शर्त तय करने के लिए बैठे हैं। मिसबाई साहब, मैंने आपको लफ्ज़ शराइत मुनाजरा उलमा ही तय करेंगे, ये मैंने आपको कितनी बार बता दिया। आप बार बार अल्फाज को सुनकर आपका होना मालूम, हमारा वक्त चल रहा है हमारा। अच्छा ऐसा है, एक भाई साहब, अगर मुस्तनद आलिम की कोई हैसियत न होती, एक मिनट और एक मिनट, हमारी और आपकी गुफ्तगू हो रही है, बस हम आपसे मुखातब हैं इस वक्त कि अगर इस शर्त को अहमियत इन हजरात ने न दी होती तो ये खुद ही बैठ करके तय कर लेते। बिल्कुल, ये लाखों रुपया खर्च करके, इनका टाइम ले करके, इनकी तालीम का नुकसान करके क्यों यहाँ पर बुलाया जाता है? क्या ये लोग खुद नहीं उसको तय कर सकते थे? ये इतनी अहम शर्त है कि जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा हाल बुक किया, लाखों रुपए खर्च किए, उलमा को बुलाया, उसी शर्त की बुनियाद पर कि हमको मुस्तनद आलिम चाहिए। ये इतनी अहम और बुनियादी शर्त है, चूंकि बहस करने के लिए तो आप लोग रोज आना है। अगर आपस में आप लोगों को बहस करनी होती तो हमको क्यों बुलाते? आपने हमको बुलाया क्या समझ कर? एक मुस्तनद आलिम समझ कर। तो हमारी जो गुफ्तगू हो रही है वो अब तक एक गैर मुस्तनद शख्स से हुई। हमारा वक्त 4 घंटे जाया हुआ। इसलिए मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि जो गलती अब तक हो गई उसको नजरअंदाज किया जाए, और फिर आप अगर गुफ्तगू करना चाहते हैं बहैसियत मुतकल्लिम तो आपके सदर आपको मुतय्यन कर दें और ये कह दें कि अब तक जिनसे गुफ्तगू हुई वो मुस्तनद आलिम नहीं है, इसलिए बहस में उनकी शिरकत नहीं होगी, हम उनकी जगह पर आपको मुतय्यन करते हैं। आप इसको बोल दें, उसके बाद में गुफ्तगू शुरू हो जाए। सदर बोल दिमाग सही हो गया। आप तो जब देखा था, जब भी इन्होंने मुझको तलब किया है, मेरा आना मतलब इस बात की था कि हाँ वो जो है अपनी इस बात को मानते हुए इन्होंने अब रही ये बात कि अगर आप मुतकल्लिम मुतय्यन हो गए जी, मुतकल्लिम आप मुतय्यन हो गए? नहीं, जरा बोल दीजिए ना उसको। नहीं, 1 मिनट, मैंने सदर साहब से गुजारिश की। कौन साहब? आपसे गुजारिश है मेरी। आप नहीं, सब लोग उसको सुन लें ताकि वो ऑन रिकॉर्ड रहे और हमारी तरफ कोई ये न कह पाए जबरदस्ती निस्बत करते हुए कि आपने जबरदस्ती करके ऐसा किया। आपस की रजामंदी से बात होगी ना, दोनों लोग राजी होकर के जो बात करें। तो सदरे मजलिस आप बताते हैं। अभी फिलहाल शरायत मुनाज़रा तय करने के लिए
मैं मुतकल्लिम की हैसियत से हूँ। आइंदा जो मुनाजरा होगा उसके लिए, चूंकि अभी मेरी मसरूफियत क्या है, कब होगा, कुछ तारीख मुझे पता नहीं, तो मैं अपने को नहीं पेश कर सकता कि आइंदा मुनाजरा के लिए भी मैं भी मुतकल्लिम साथ में अभी जो गुफ्तगू हो रही है शरायते मुनाजरा के ताल्लुक से, उसके लिए मैं मुतकल्लिम की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जी हाँ, तो अब ये आपने इसका एतराज कर लिया, ये गलती किया। भाई शरायते आप फिर इसकी शर्त थी, शर्त हम तय करने बैठे हैं। पहले से अगर शर्त होती तो तय करने की जरूरत ही नहीं होती, पहले से ऐसी कोई शर्त नहीं थी। तो उसमें जी शरायत तय करने के लिए क्या है, आलिम तय करेंगे, ये शर्त मुस्तनद उसमें जिक्र नहीं है। शरायत नहीं, जब तहरीर की उनके नजदीक हैसियत नहीं है तो आप दोनों की बात तो हुई है। नहीं, आप कह दिए ना उनसे सदर साहब से कि मुस्तनद आलिम की शर्त लगी थी कि नहीं, आपके दरमियान सज्जाद भाई के दरमियान ये बात हुई थी ना कि दोनों तरफ के मुस्तनद आलिम दीन बात करेंगे, बात खत्म हो गई, अब उस पर बात नहीं होगी, उनसे कहिए उस पर बात न करें। मुझे कहने क्या, लेकिन मेरा ये नहीं है कि मैं अपने मुंह से को मैं आलिम हूँ, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं खुला हूँ, मैं मुफ्ती हूँ। तो तय कर लीजिए, इसमें दिया हुआ है। हाँ, वो नंबर बता, हमारे पास तो एक आलिम है। कौन सा नंबर पढ़ना है? अच्छा, सदर की बात है, आप कहिए कि इनको हटाया जा रहा है इस वजह से। हर फरीक अपने अपने सदर मुनाजिर खुद इंतजाम करेगा। मैं उनसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, कुछ मुझे भी आप अपना देखिए ना, उसको सुना नहीं, कोई टाइम मुझे नहीं दिया जा रहा है, अब देख रहे इतनी देर से। मैं कह रहा हूँ बेचारा मैं भी पढ़ा लूँ, मैंने उसको भी नहीं पढ़ा है कि वहाँ भी मुस्तनद की कैद है। अब अगर वाकई ये खैरखाही अखलास पे मबनी होता तो शायद ये बहस इतनी तूल न पकड़ती कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, आप आगे चलिए ना। आपको क्या चाहिए, आपको भी क्या चाहिए? वो जो आप जिक्र कर रहे हैं कि शरायत तय करने के लिए भी मुस्तनद आलिम का होना जरूरी है, तो कहाँ पे कह दीजिए दोनों की? नहीं कह, उसमें आलिम लिखा है, पहले ये दोनों आदमी की बात हुई है, मुस्तनद आलिम। हाँ, देखिए शरायत मुनाजरा और वक्त मुनाजरा तरफैन के उलमा ही तय करेंगे, इसमें मुस्तनद का जिक्र नहीं है, यही मैं कह रहा था। क्यों नहीं, जब उनको कुरान मुस्तनद हम नहीं कह सकते। मैंने पहले कह दिया, चीजों का इनकार नहीं किया जाता है। आप अभी बोलेंगे मेरा भी वक्त लिया है, मुझे वक्त दे करके फिर बोलना शुरू कर देते हैं। अब इसको खत्ते बहस न कहें तो फिर क्या कहें, कि आपको उलझाना, आप फरीक मुखालिफ को टाइम नहीं देंगे तो फिर वो क्या, कितनी देर से कितनी बार टाइम दिया, फिर आपने टाइम ले लिया मेरा आपके खुद कितनी देर से कह रहे हैं, तो थोड़ा तो मैं कह रहा था इसमें मुस्तनद नहीं है, इसमें मुस्तनद नहीं है। तो चलिए मुतकल्लिम पहले ये वजाहत कर दे आप, पहले वो मुतकल्लिम था, उसके पास मुजाहिदीन है कई सालों से जो है दूसरे तरीके के लोगों के साथ ये सब मुनाजरा करते हुए फाइट करते हुए आए, बहुत सारी हिंदुस्तान की बैंगलोर की मस्जिदें बचाकर इन्होंने सबने हमने 4-4 लोगों ने मिलकर तय किया, 1 से 10 रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हमें रिकॉर्डिंग में बोला शरायत तय करने के लिए भी मुस्तनद आलिम चाहिए, इसमें मुस्तनद नहीं। रिकॉर्डिंग है आपके पास? हमने बोला आपने मुस्तनद नहीं है, आलिम तो है ना? हाँ, आलिम। आलिम। तो क्या आप अरबी डिप्लोमा की बुनियाद पर किसी को आलिम मानते हैं? नहीं, अरबी नहीं मानते हैं। तो शफी साहब देखिए, अभी अरबी डिप्लोमा की बिना पर हम मुस्तनद आलिम नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आलिम तो हो गया, मुस्तनद नहीं मानते, मुस्तनद आलिम नहीं है, इसका मतलब क्या है? मुस्तनद नहीं है। मसलन किसी ने अल-एदादियत सामिया फजीलत तक पूरी तालीम हासिल किया है, किसी वजह से
वो फाइनल एग्जाम न दे करके सनद नहीं हासिल कर पाया, तो हम उसको आलिम कह सकते हैं या नहीं? अगर तालीम उसने हासिल की है और सनद नहीं ले पाया, ठीक है, सनद नहीं पाया, लेकिन उसकी इल्मी सलाहियत तो बता देगी ना। हाँ, तो वही अब कम से कम मौका दीजिए, वो इजहार करेंगे, उस मौके पर आपको कहने का हक है कि आप नहीं है। अभी कहाँ मौका है? अगर जिसने 9 साल पढ़ाई की है। दूसरी बात यह है, शफी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ऐलान कीजिए, शफी साहब, सदर साहब जो है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे फरीक़े मुखालिफ के मुआविन मिसबाही साहब ने ये इतराफ कर लिया है कि मैं मुतकल्लिम रहूंगा। अभी मुफ्ती साहब आप शायद अभी फिलहाल के लिए अभी आपने कहा शराइत तय करने के लिए मैं फिलहाल शराइत की बात कर रहा हूँ, नहीं है हालिया लफ्जिया आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा नहीं, चूंकि चाहिए मुझे भी आता है, हम हमारे मसरूफियात हैं। इन्होंने अपने मुतकल्लिम होने का ऐलान किया है, अब आप ये ऐलान कीजिए कि सामने वाला आलिम नहीं है, इसलिए मैं अपना मुतकल्लिम चेंज कर रहा हूँ। बस इतना बोलिए। आप इतना आलिम नहीं है, माइक दीजिए उनको। आलिम है मुसलमान नहीं। अगर आलिम की कैद पर बात होगी तो फिर बात लंबी हो जाएगी, फिर हम आलिम की तारीफ भी पूछ सकते हैं, फिर मुस्तरद गैर मुस्तरद की वजाहत भी आपसे करवा लेंगे, क्योंकि आप उसको बोलना क्या माइक दीजिए उनको। आकाश भाई, शफी भाई को माइक दीजिए। एक एक आदमी बोले। क्लास नहीं है, क्लास नहीं है, ना होने की वजह से कारी अहमद हसन साहब बनाते हैं और उनको हटा रहे हैं। कारी अहमद हसन ये बोलिए आलिम की सनद नहीं होने की वजह से आप मुस्तनद का मतलब ही होता है सनद हासिल किया हुआ। कारी अहमद हसन साहब उलझा रहे हैं, बहुत उलझा रहे हैं। बात है मुस्तनद आलिम न होने के मतलब ये सनद याफ्ता न होने की वजह से। अब कोई सनद हो इतना भी कोई वो करता है क्या? मैंने इतना करो कि 5 घंटे आपने बर्बाद किए हैं। हकीकत ये आपने ज़ाय की है। बुजुर्ग मोहतरम, हम आपका अदब कहते अगर हैं। यही फैसला करना होता तो मैं आपके साथ कर सकता था। अगर यही फैसला करना होता तो बिहार में जब बात हुई थी तो मैं आपके साथ कर सकता था, नहीं किया। क्यों? ये बात होने की वजह से। अब आपका दूसरा आलिम भी जो है वो आलिम नहीं है। दीन है मगर सनद नहीं है, ये क्या बात जब खत्म कर डालेंगे बात, छोड़ो बोल डाले होगा, बैठ जाओ क्या करना। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन, आपने देखा कि मुफ्ती साहब ने किस तरह से कारी अहमद हसन की ज़ुबान के ऊपर ताला लगवा दिया और फ़कीह और उनकी जमात के जो सदर हैं अवाम में से, उस सदर साहब ने ऐलान कर दिया कि इनके पास सनद नहीं है, ये मुस्नद आलिम नहीं है, इसलिए नहीं बोलेंगे। और उनके तरफ से मुतकल्लिम ओ फर्जी मिसबाही बोल रहा है, जो मिसबाही था मगर गुमराह हो चुका है, अब वो मुतकल्लिम की हैसियत से बोलना शुरू किया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो इस तरह से अहमद हसन के बोलने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और उसकी जमात की तरफ से ऐलान हो गया कि वो आलिम नहीं है, इसलिए वो नहीं बोल सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद अब अगला पार्ट जो अपलोड होगा उसमें भी और बहुत सारी हकीकतें आप देखेंगे और किस तरह से अहमद हसन और उसका ये पूरा टोला किस तरह से जहालत के ऊपर मबनी है और किस तरह से उल्टी सीधी बातें करके वक्त को बर्बाद कर रहे हैं और इतनी बड़ी जहालत सर पे लेने के बाद ये मुनाजरे के लिए शराइत करने बैठे हैं। शराइत में ही इनका ये हाल है, फिर मुनाजरा में क्या हाल होगा? आप हज़रात इंतज़ार करें 5वें पार्ट का और फिर उसको भी मुलाहजा करने की कोशिश करें।